सर केरला चुनाव को इस बार आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या बदलाव होगा? नहीं, बहुत अहम चुनाव है। केरल के राजनीति में, केरल के हिस्ट्री में ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। लोग ऐसे देख रहे हैं और मैं मानता हूं कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा केरल के राजनीति में। सर गारंटीज की बात जो है यूडीएफ ने कही है, लेकिन कर्नाटका की अगर बात करें तो खुद के ही एमएलएस जो है इन गारंटीज पर सवाल उठाते रहे। क्या लगता है आपको कि क्या इन गारंटीज की बदौलत इस बार यूडीएफ को जो है सफलता मिल पाएगी? नहीं नहीं, देखिए, गारंटी वो तेलंगाना में नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो गारंटी बोल के लोग के वोट तो ले लेते हैं, लेकिन मिलने के बाद वो कुछ करते नहीं हैं। तो देखिए, ये केरल है। केरलम में लोग सब जानते हैं, पहचानते हैं, यूट्यूब देखते हैं, सब उनके पास इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही मुश्किल है। वो कांग्रेस को पता चल जाएगा। क्या हंग असेंबली? ये देखेंगे देखेंगे। राजीव चंद्रशेखर जी, First of all, today is a very important day and a very happy day for the voters of Kerala. It is a celebration of our democracy. But equally importantly, this is an opportunity that is given to every voter every 5 years to decide what is the future of our state, what is the future of our children, what is the future of the lives of our Malayalis. So this is an important opportunity. I have said all along, this is one of the most decisive and historic elections in the history of Kerala's politics. I have no doubt that the people of Kerala today will decide that the future of Kerala has to be about development, has to be about equal opportunities for all Malayalis. And that is precisely the vision for the last several months the BJP and NDA has put forth in front of the people. And we are hopeful and very confident that the people of Kerala will steer Kerala in the right direction of development and growth. We are seeking an opportunity today to enter the assembly, all 140 BJP NDA candidates, not to jump on tables, not to create confusion, not to create melees and fights in the assembly as we have seen for the last 70 years. We are doing this. We are seeking an opportunity to enter the assembly to serve our people, to guide our state, to fight for our people's problems, and usher in a new vision of Viksit Kerala. That is why I request every Malayali today to join in the celebration of democracy, not be a bystander, not be a spectator, be an active participant. By voting today, please exercise your franchise. It is your duty as well as it is your fundamental right. does any chance for hung assembly in Kerala, sir? I think there is a very strong chance that both the CPM and the Congress will not get a mandate, and therefore there is a very, very strong likelihood that the BJP and the NDA will play a decisive role, that the people of Kerala will give them a decisive role in Kerala's politics going forward. चेटा, इस बार केरला में किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? Vigasa. Development is the main issue. क्या लगता है आपको इस बार क्या जो एलडीएफ का एंटी इनकम्बेंसी है वो खत्म कर Sure. That is anti-incumbency and people vote for development compared to the previous poll. Now people are shifting their focus to development, not only politics between different allies. Right, Cheta. What is your name? Raghunath Nair. Thank you. केरलम में आज लोकसभा का पर्व है और इस अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए सुबह से ही लोगों में उत्साह जो है वो खासा देखा जा रहा है। और यहाँ पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लाइंस में लोग सुबह से ही जुटना शुरू हो चुके हैं, जो दिखाते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए लोगों में खासा उत्साह जो है वो सुबह सुबह ही देखा जा रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर जी भी जो है वो यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाती है कि किस तरह से केरला के लोग अगर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना हो तो किस तरह से जागरूक है। ये तस्वीरें ये बयान करने के लिए काफ़ी है। लेकिन अब बात करते हैं केरला के इस कंटेस्ट की, तो आपको बता दें कि खास दो पार्टियां जो है एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में ये मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है। क्या पिनराई विजयन तीसरी बार अपनी पार्टी को जीत दिला पाएंगे, क्या हैट्रिक लगा पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल। तो वहीं दूसरी ओर यूडीएफ को लगता है कि एक साइलेंट एंटी इनकम्बेंसी और साथ ही जिस तरह से 10 साल का जो रूल रहा है लेफ्ट का वो और अपनी गारंटीज़ के बलबूते यूडीएफ जो है अपनी
सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर रही है। और राहुल गांधी ने भी पूरा जोर इस बार कैंपेनिंग के जरिए लगा लिया और ये पूरा चुनाव जो है राहुल गांधी के चेहरे के ऊपर जो है वो लड़ा गया है। तो वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी एक थर्ड फोर्स के तौर पर उभरने की कोशिश कर रही है। इस वक्त जहां हम मौजूद है वो नेमम कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर बीजेपी ने पहली बार विधानसभा की कोई सीट जो है वो जीती थी अगर 2016 की बात करें, लेकिन 2021 में लेफ्ट के हाथों बीजेपी ने ये सीट गंवा दी थी। तो कोशिश है कि फिर एक बार नेमम कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो अपने पाले पर डाली जाए और राजीव चंद्रशेखर इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा इलेक्शंस में भी जिस तरह से बीजेपी ने एक सीट जीती थी त्रिशूर की, तो उसके बाद उन्हें लगता है कि केरला में जो है कहीं ना कहीं वोट शेयर तो मजबूत होगा ही, साथ ही वो एक थर्ड फोर्स के तौर पर उभरेगी। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो एक बात साफ है कि ये एक अस्तित्व की लड़ाई जो है खासतौर पर यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में देखी जा रही है, जहां एक पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है तो वहीं यूडीएफ जो है वो पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी अपनी गारंटीज के बलबूते फिर एक बार सत्ता में वापसी करना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि यूडीएफ के पास जो है क्योंकि कोई खास सीएम चेहरा नहीं है और पूरी ये लड़ाई जो है वो बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की तरफ से जो है राहुल गांधी के चेहरे पर ये लड़ी जा रही है। नेशनल पॉलिटिक्स और यहाँ के जो पिनराई विजयन है उन दोनों के बीच में जो है ये मुकाबला किस तरह का रहेगा, इसका भविष्य जो है आज जनता ईवीएम बॉक्सेस में आज तय करेगी।